welcomed in online classes delivered by Sushil sir. Students, today I will teach you mathematics of class 10th and our topic is Euclid's division lemma and its application. Students, first of all, as chapter suggests, the name of chapter is real number. We have been familiar already with the word real numbers in class 9th. But to be continue, once again, I will define real numbers. All the numbers, including rational and irrational, that can be represented on number line are said to be real numbers. Students, content of real numbers हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम और लेम्मा. एल्गोरिथम और लेम्मा. व्हाट इज एल्गोरिथम? स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम ये सीरीज ऑफ well defined steps that provides a procedure to solve a type of problem is called an algorithm. Is called an algorithm. Is called an algorithm. After that, we will try to understand the meaning of lemma. The meaning of lemma. Lemma. ये प्रूवन स्टेटमेंट that is used for proving and other statement. All of you are keep on watching. And other statement is known as lemma. Is known as lemma. Students, first of all, I want to explain from where we get the word algorithm. The word algorithm comes from the name of the 9th century Persian mathematician अल-ख्वारिज़मी. इनका पूरा नाम मुहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी था. वास्तव में अलजबरा शब्द भी इनके द्वारा लिखे गए बुक हिसाब अल-जब्र वल मुकाबला से लिया गया है. और स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट Euclid's division lemma. Students, since junior classes, since a long of time, we have been studied that if we divide 49 by 8, 8 6 48, we get
6 as quotient and 1 as remainder. Students, sometimes remember when B. Bear asked verify, divide and verify your answer. We used to write that dividend equals divisor multiply by quotient plus remainder. Dividend equals divisor multiply by quotient plus remainder. इस रिलेशनशिप से हम बहुत पहले से ही फैमिलियर हैं। इस रिलेशनशिप से हम बहुत पहले से ही फैमिलियर हैं। लेकिन सबसे पहले यूक्लिड ने इसे अपनी बुक 7 ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट तो यूक्लिड ने अपने बुक 7 ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट में फर्स्ट टाइम इस रिलेशनशिप का बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया और कंपोज किया। इसलिए हम इसी डिवीजन के रिलेशन को यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा कहते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कहते हैं। तो आइए, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा? व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा? स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है। If there are two positive integers, A and B, then there exists two unique whole numbers Q and R such that A equals B Q plus R, where zero is equal to R less than R is less than B, जहां R की वैल्यू 0, R greater than 0 but less than B होती है। तो स्टूडेंट्स, बी वेयर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस रिलेशन, बट फर्स्ट टाइम यूक्लिड्स ने इसे अपने बुक 7th ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट में फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया। इसीलिए हम इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। और अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का एप्लीकेशन सीखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। यहाँ Q और R यूनिक है क्योंकि नो अदर वैल्यू ऑफ Q एंड R कैन सेटिस्फाई द रिलेशन A equal BQ plus R।
स्टूडेंट्स एप्लीकेशन सीखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्विलिब्रियम डिवीजन algorithm is used to find the highest common factor of two numbers and express this highest common factor in the form of a linear equation, ये form of linear equation। तो आइए पढ़ते हैं, जहां समझ में आता है वहां समझते जाएंगे हम। स्टूडेंट्स, if we take two integers a and b, and their HCF, अगर इनका HCF स्टूडेंट H हो, अगर ये और B का HCF H हो तो H इक्वल्स AX प्लस BY के रूप में एक्सप्रेस करना। हाउ टू एक्सप्रेस द HCF ऑफ A एंड B इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ये हम सीखेंगे। दो नंबर हम A और B लेंगे और उनका HCF निकालेंगे। अगर उनका HCF H आता है तो H इक्वल AX प्लस BY के रूप में एक्सप्रेस करना हम सीखेंगे। चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। हम लेते हैं 625 and 225. We have been given two numbers 625 and 225. First of all, we have to find their HCF, but by applying Euclid's division algorithm, आइए let's do। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं 625 दैट इज ग्रेटर इक्वल 225 मल्टीप्लाई बाई। इसे करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते रहेंगे। 6 2 5 को आपने डिवाइड किया 2 2 5, तो 2 बार लेके आते हैं, 2 5 कितना आता है 450 आता है। क्या 175 रिमाइंडर आता है। तो 625 इक्वल्स टू यहाँ Q की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 175, 2 प्लस 175। फिर हम 175 से डिवाइड कर देते हैं 2 2 5, जो कि हमारा ये मेथड हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड for finding HCF of two or more numbers long division method. This is a traditional method that is used since our ancestors time. तो 1 time 175, 5 minus 5 0, 12 minus 7 5, 1 minus 1 nothing. Thus now we will write 225 equals, next time B की वैल्यू 175, क्वेश्चन 1, रिमाइंडर 50। We will continue this process till रिमाइंडर 0। हम यह प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि हम रिमाइंडर 0 रिसीव नहीं करते, गेट नहीं करते। 175 50 3 150 25। Now we will write 175। Students, one step is called Euclid's division lemma, but a series of lemma is together called algorithm. Now I am using Euclid's division algorithm to find highest common factor of 625 and 225, and I will continue this process until रिमाइंडर 0। हम यह प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे
जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। लेट्स ट्राई दिस टाइम। वैल्यू ऑफ b 50 मल्टीप्लाई बाई r की वैल्यू जो कि यूनिक है 3 आता है, और r वो भी यूनिक है, वैल्यू 25 आता है। क्या एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है? दिस टाइम 2 टाइम रिमाइंडर एंड 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। तो स्टूडेंट दिस टाइम we will write 50 equals 25 multiply by 2 plus 0 the number written upon 0 is said to be HCF of given two numbers. Thus HCF of HCF of 625 and 225 equals 25. Now अब हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है 25 equals 625x plus 225y लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आइए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं, यहीं से हम वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे LHS, हमारे पास LHS हमें ये प्रूव करना है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? 25 LHS लेफ्ट हैंड साइड में हम लेते हैं 25। क्या लेते हैं? 25। ये हमारा क्या है? LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा है राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड ला करके प्रूव करेंगे। लेट्स कम 25। अब इस लाइन से हम 25 इक्वल्स यहां से आएगा 25 इक्वल्स 175 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाई 3। एम आई राइट? ये वैल्यू आएगी, क्योंकि जब यहाँ 25 को हम रोक लेंगे और 50 इंटू 3 को ट्रांसफर करेंगे, तो इधर 50 इंटू 3 क्या है? पॉजिटिव इधर जाएगा, निगेटिव बनेगा। तो 175 माइनस 50 इंटू 3। फिर अब हम यहाँ पे किसकी वैल्यू लेते हैं? 50 की वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे 175 माइनस 50 की वैल्यू क्या है? 50 को यहाँ रोक लीजिए और बाकी को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या आएगा? 225 माइनस 175 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हम सॉल्व करते हैं। 175 माइनस 225 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 175 मल्टीप्लाई बाई 3। यहां पे हम देखते हैं 3 और 1 4। इस प्रकार से आता है 4 मल्टीप्लाई बाई 175 माइनस 225 मल्टीप्लाई बाई 3। एक बार फिर अब हम 175 की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम फाइंड करेंगे वैल्यू किसकी? 175 की।
यहाँ पे 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाई, और यहाँ पे हम 175 की वैल्यू फर्स्ट स्टेप से लेंगे तो आएगा 625 माइनस 225 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या आएगा 625 माइनस 225 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 225 मल्टीप्लाई बाई 3। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या आता है। 4 मल्टीप्लाई बाई 625 माइनस 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 225 माइनस 3 इंटू 225, अब आएगा 625 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 225 मल्टीप्लाई बाई 8 and 3 11, 8 and 3 11। अब हम कंपेयर कर सकते हैं और अब हम लिख सकते हैं 25 इक्वल्स 625 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 225 मल्टीप्लाई बाई -11। अब अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो हम h इक्वल ये x प्लस बी वाई, तो इस क्वेश्चन में हमारा x की वैल्यू 25 है, x की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 225 है और y की वैल्यू -11 है। स्टूडेंट्स, इसे अभी हम और भी तरीके से ये एक्सप्रेशन यूनिक नहीं है। अभी हम इस इक्वेशन को दो और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे उम्मीद है आप लोग इक्विलिड डिवीजन लेम्मा और ये सीरीज ऑफ लेम्मा इज नोन एज एल्गोरिथम, तो इक्विलिड ने पहली बार अपने बुक 7 इक्विलिड्स एलिमेंट में इसका जिक्र किया था। इसलिए जो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर्स, इस रिलेशनशिप को हमने नाम क्या दिया, इक्विलिड्स डिवीजन लेम्मा। वास्तव में इस लेम्मा से हम पहले से ही फैमिलियर थे। तो स्टूडेंट्स, हम समझ में हमारे आ गया है इक्विलिड डिवीजन लेम्मा और एल्गोरिथम का यूज करके दो नंबरों ए और बी का एचसीएफ फाइंड करके उन्हें लीनियर इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में बताएंगे और ये वीडियो हमारा क्लास 10 मैथ का कंटिन्यू चलता रहेगा। तब तक के लिए वीडियो बार बार वॉच करते रहिए। थैंक यू।